and office on wheels and land records digitization is also another area we want to do. We are having a vast land with us. We want to digitize the things, land records. Yes. See, in 2012-13 budget, there was a proposal and it has been accepted that in 6 months, and that was taking place even earlier occasions also. This occasion also, the fare when we took up the fare revision, simultaneously that fare fuel adjustment component came. Otherwise, practically it was 10% on passengers and 5% on this. This will continue because it was even earlier also it was enhanced. It was implemented, and now also it will go on implemented. No monthly. Once. Pardon? Which model of PPP are you wanting to follow? See, especially in coal circuits, iron ore circuits, there are so many of that kind wherein the private players, they play an important role. Laying the track, and after completion of the project, they will make use of that railway track along with the other operation part will be with us, and the revenue generated, it will be shared between the private players and that of ministry. Mr. Minister, I'm Venkataraman, Venkataraman from Dinama. The border of southern India. Now we found from your record that Bangalore become a border of South India because the priorities and focus has been even more on Bangalore. But when we talk about the tourism, in Tamil Nadu there is particularly called Navagaraha temple such as anywhere in the world is not there. No. Why not? Now, practically, yes. You have any plan to incorporate Navagaraha temple as a circuit in the religious tourism? See, in religious tourism, we just named a few areas only, but we will link almost all the, after getting in touch with the various pilgrimage centers, we will connect all the areas of the country. See, we have mentioned the name of Rameshwaram, we have mentioned the name of Melmarvattur. All these things are in Tamil Nadu, I hope so. Velankani, all these things are in, all these places are in Tamil Nadu, I hope so. It is not in Karnataka. So, you in your budget speech, you have already referred to API. चलिए, तो फिलहाल सदानंद गौड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और साथ ही साथ अपनी बातें बता रहे थे। हालांकि जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है सुष्मिता, उससे क्या लग रहा है आपको कि क्या जनता को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ अब मोदी सरकार आने के बाद वाकई में अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं? आप देखिए, सलामत जनता की संतुष्टि की बात है तो ये तो तभी पता चलेगा जब ये योजनाएं हैं वो मूर्त रूप लेंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ योजनाएं हैं और कागजों में ही सिमटी हुई हैं, लेकिन क्या वाकई में हकीकत के धरातल पर ये सही साबित होंगी, ये देखने वाली बात होगी और ये कुछ समय बाद ही पता चल सकेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली जी भी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बजट को वो किस तरीके से देखते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आज मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश हुआ है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़रूर की जा रही थी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाया हुआ है पहले से ही, और लोग अभी तक उस सपने को जी रहे हैं कि आखिर कब होगा वो सच। तो क्या लगता है, किस तरीके से आकलन करेंगे इस बजट का? क्या कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखाई दी और क्या कुछ इसमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है? ये जो बजट है आधी खुशी आधा गम वाला है जी। कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी तरीके से उसे रखा है। जिस तरह से बुलेट ट्रेन की बात की है, मुंबई अहमदाबाद और कई रेलवे स्टेशन को उन्होंने सुधारने की बात की है। अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई भी उन्होंने 56 नई ट्रेन देने का वादा किया है। मगर आज जो मुंबई की स्थिति है, आज जो उपनगरीय रेल की जो सेवा की जो स्थिति है काफ़ी बदतर है। आज मुंबई का जो आम यात्री है इन सेवाओं से इतना प्रभावित है कि ट्रेन का जो सफ़र है काफ़ी मतलब एक शारीरिक श्रम वाला बन गया है। तो कहीं ना कहीं तो रेलवे मंत्री को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए शौचालय, साफ सफाई, ये तो बेसिक एमिनिटीज़ है। जब रेलवे हमारे से किराया लेती है तो सुविधा देना उनका काम है। तो ये जो सुविधाओं के नाम पर उन्होंने एक जो नया एक नई घोषणा की है वो पहले से ही हर यात्रियों को देना रेलवे का कर्तव्य है। सबसे ताज्जुब की बात है कि उन्होंने मुंबई अहमदाबाद ही क्यों चुना, क्योंकि कम दूरिया वाली ट्रेन को उन्होंने बुलेट ट्रेन में परिवर्तित करने की जो बात कही है, निश्चित तौर पर आज मुंबई दिल्ली, मुंबई जम्मू तवी, अगर से लंबी दूरी को उन्होंने बुलेट ट्रेन में परिवर्तित करते तो निश्चित तौर पर स्वागत होता। मगर हम देखेंगे कि पिछले कई रेलवे के जो बजट थे, घोषणाएं होती हैं, मगर जब उसे साकार करने की बात आती है तो रेलवे प्रशासन हमेशा 2 कदम पीछे रहता है। उसी के लिए उन्होंने शायद 5 साल में कुछ तो कुछ हमने किया है, बुलेट ट्रेन चलाई है, उसके लिए उन्होंने मुंबई अहमदाबाद का एक विकल्प चुना होगा। ऐसे कई जो इश्यूज़ है, जैसे रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की, आज उन्होंने सीसीटीवी लगाने की बात की है। आज मुंबई में कई स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो रेलवे प्रशासन के जो अधिकारी है, जो आरपीएफ के जवान है, जो जीआरपी के जवान है, उस पर भी उनको ध्यान रखना जरूरी है। सीसीटीवी के अलावा जो उन्होंने जो रेलवे में जो आरपीएफ की जो 17,000 जो पोस्ट की कमी थी उसे भरने की बात की है, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। क्योंकि आज रेलवे में जो आरपीएफ की जो कमी की वजह से कई जगह सुरक्षा को लेकर कई गंभीर मामले होते हैं। तो ये आधा खुशी और आधा गम वाला रेलवे बजट हम कह सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं खुशी कहीं गम वाला कहा जा सकता है। आधी तरफ खुशियां दी गई हैं तो आधा जो अंधकार भरा पहलू भी इसका सामने आ रहा है। अनिल जी, ऐसे में जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें की गई थी मोदी के इस पहले रेल बजट से, अब घोषणा कर दी गई और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था बुलेट ट्रेन का कि आखिरकार कब, भारत में वो दिन कब होगा जब बुलेट ट्रेन भारत में रेल पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं उसे साकार करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर वक्त लगेगा, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बुलेट ट्रेन का जो सपना है, कम से कम उसे देखने के लिए लोगों की आंखें अब खुल गई हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ, वो दिन दूर नहीं है, अब कम से कम ये पहल भी हो सकती है। और बुलेट ट्रेन को भले ही वक्त हो, लेकिन हाई स्पीड ट्रेनों की जो उन्होंने बात कही है और पूरे भारत को, भारत का जो नक्शा है उसको डायमंड क्वाड्रिलेटरल के जरिए जोड़ने की जो कोशिश की गई है, 4 बड़े महानगरों को, 4 बड़े मेट्रो को, तो वो भी एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो तेज गति की आवश्यकता है, क्योंकि आज विदेशों में हम देखेंगे कि जो हाई स्पीड हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, तो हम भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने घोषणा की है उसका स्वागत है। मगर उसमें एक तकनीकी कारण ये है कि आज हिंदुस्तान में जो रेलवे स्टेशन है, जो पटरियाँ है, उसके आसपास के परिसर आज भी खुले हैं। कोई भी या आम पब्लिक या कोई वाहन उससे इजीली उसमें से प्रवेश कर सकता है। तो हमें सबसे पहले जो अलग अलग जो स्टेशन परिसर को अलग अलग तरीके से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन और जो हाई स्पीड ट्रेन चलेगी तो उसमें कोई अवरोध उत्पन्न न हो। क्योंकि आज भी कई जगह हमें जो दिक्कतें आ रही है, आज जो दुर्घटनाओं की जो संख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान में, ताकि रेलवे का परिसर आज भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ कोई भी किसी भी छोर से प्रवेश कर देता है। तो उन्हें सबसे पहले उन प्रवेशों को बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग आसानी से रेलवे परिसर में आते हैं। तो निश्चित तौर पर हाई स्पीड और जो बुलेट ट्रेन, ये कल्पना अच्छी है। और अगर इसे हम 5 से 10 सालों में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर रेलवे की जो दूरी है, जो अन्य देशों की तुलना में कम होगी और आम यात्रियों को उसकी सुविधा निश्चित तौर पर मिलेगी।
जाहिर है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की तरह ही भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा रेलवे पर निर्भर करती है और ऐसे में रेलवे को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या रेलवे की मजबूती पर ध्यान दिया गया है, और तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अलग अलग किस्म के गाने होते हैं, वो मुझे गाने को मिल रहे हैं। जैसे कि फिर मोहब्बत से बारिश बहुत अलग है, फिर बारिश से बंजारा बहुत अलग है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। हाय, मैं मोहम्मद इरफान और मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके चैनल पर लेमन न्यूज़ पर मेरी कहानी आप सबको सुनाऊँ। इरफान अली की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी, सिर्फ लेमन न्यूज़ पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। मेगा फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है? लेमन न्यूज़ का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज़ पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। रेल बजट जिस तरह से पेश किया गया है, सदानंद गौड़ा ने जो तोहफा दिया है, कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो जहां खुशी है लोगों को कि कई सारी अच्छी बातें इस रेल बजट के ज़रिए जो है वो लोगों को मिल रही है, वहीं कई दुख भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। हालांकि महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं में 4000 महिला कांस्टेबल को जो है वो भर्ती की जाएगी, ये एक अच्छी खबर भी मानी जा रही है। साथ ही साथ यदि बात की जाए जो धर्म स्थल है वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेनें जो है वो शुरू की जाएगी। लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी हमारे साथ मौजूद है। गलगली जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से महिला कांस्टेबल को भर्ती करने की बात की जा रही है, एक अच्छी खबर ज़रूर ये मानी जा सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज पिछले अगर 2 वर्षों की हम बात करेंगे तो उपनगरीय रेलवे सेवा में महिलाओं पर जो हमले होने के, उन पर अत्याचार होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं तो इसे रोकने के लिए आपको हर स्टेशन में चौकस रखना पड़ेगा और महिलाओं के डिब्बे में खासकर महिला कांस्टेबल की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि आज भी पुरुष कांस्टेबल ही अगर महिलाओं के डब्बे में होते थे तो कहीं ना कहीं तो महिलाओं में सुरक्षित की का जो एक एहसास होना चाहिए था, नहीं होने से कई जगह अब भी हमले होने की स्थितियाँ बनी हुई थी। तो ये जो उन्होंने कदम उठाया है ये प्रशंसनीय है। इसके अलावा जो महिला यात्रियों के लिए जो अलग से एक जो कांस्टेबल की उन्होंने नियुक्ति करने का जो फैसला किया है, उससे जो महिला डिब्बों में भी उनकी वहाँ नियुक्ति होगी और निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा
और जो होने वाले हमलों में गिरावट आ सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन क्या उससे निपट पाने में मोदी सरकार का ये जो रेल बजट पेश किया गया है वो कारगर साबित होगा कि नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि अहम ऐलान किया गया है, 40 महिला आरपीएफ की भर्ती की जाएगी, साथ ही 17,000 पुलिस जवानों की भी भर्ती की जाएगी रेलवे के अंदर। लेकिन अनिल जी, जिस तरीके से यात्री सुविधाओं का अभाव माना जाता है भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत, क्या वो सुविधाओं के नाम पर जो आज ऐलान किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बायो टॉयलेट्स बनाने की बात कह दी गई है, बुजुर्गों के लिए कार चलाने की बात स्टेशन पे कह दी गई है, स्केलेटर्स लगाने की बात, साफ सफाई जो प्रमुख स्टेशन है उन पर साफ सफाई, और साथ ही साथ सबसे अहम सवाल ये भी कि प्राइवेट सेक्टर को सफाई व्यवस्था देने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को हावी करने की कोशिश, उसे भी आगे लाने की कोशिश की गई इसके जरिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो रेलवे की स्थिति है, यहाँ सफाई से लेकर जो खान पान सभी जगह दुर्दशा काफ़ी है और उससे आम यात्री हमेशा प्रभावित होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात कर रहे हैं तो उस पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आज कई जगह रेलवे की जो कैंटीन है और कई जो सुविधाओं में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर लाया है मगर वो भी फेल हो चुका है। तो रेलवे को वहाँ एक मॉनिटरिंग करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है जो इन चीज़ों पर मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि हम घोषणाएँ करते हैं, सुविधा देने के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को लाते हैं, मगर आगे मामला वैसा ही बनता है। क्योंकि आज रेलवे के पास पर्याप्त स्टाफ है, जो स्टाफ इन सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त है, मगर प्राइवेट सेक्टर लाने से वहाँ एक अराजकता बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर कौन नियंत्रण करेगा, प्राइवेट सेक्टर की शिकायत कौन लेगा। क्योंकि जैसा मुंबई मेट्रो का मामला है, वह प्राइवेट सेक्टर लाने की क्या स्थिति पैदा हुई, सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट सेक्टर के कुछ अच्छे पहलू भी है मगर कुछ घातक परिणाम भी होते हैं। तो रेलवे मंत्रालय को, रेलवे प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक नीड है, आज रेलवे स्टेशन में हम टॉयलेट की बात करेंगे तो वहाँ भी लूट मची हुई है, तो वहाँ सुविधा देनी चाहिए। और मेरा तो एक मांग है रेलवे प्रशासन से कि टॉयलेट ये सुविधा जो एक ज़रूरी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पहले शौचालय बाद में देवालय, तो उन्हें इन शौचालयों को मुक्त करना चाहिए। रेलवे प्रशासन को इन सफाई और रेलवे शौचालय के जो मामलों को स्वयं के अधिकार में लेकर वो यात्रियों के लिए निःशुल्क करना चाहिए, ताकि रेलवे के स्टेशन अच्छे हो, वहाँ सुविधाओं की भरमार हो और रेलवे स्टेशन जो शौचालय से पर्याप्त हो। बिल्कुल जाहिर है, तो सवाल यही उठता है कि यात्री सुविधाओं के नाम पर ऐलान किया गया है, उससे वाकई यात्री कोई फायदा उठा पाएंगे, उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं। यहाँ पर अनिल जी, एक अहम सवाल ये भी कि एफडीआई की मंजूरी की बात भी की गई है कि कैबिनेट के सामने एफडीआई के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इसे किस रूप में आप लेते हैं अगर एफडीआई को मंजूरी मिलती है? हालांकि पहले से ही बीजेपी के अंदर, मंत्री लोगों के अंदर ये खींचतान मची हुई है कि एफडीआई लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इसे लेकर पहले से ही काफी द्वंद्व है। तो आने वाले समय में एफडीआई को लेकर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? रेलवे की जो एक अर्थव्यवस्था है और जो उसकी व्यापकता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ कुछ आंशिक तौर पर एफडीआई की जरूरत पहले की सरकार ने भी व्यक्त की थी और तभी कुछ उनके पार्टी के लोगों ने भी उसमें सहमति जताई थी, मगर चुनाव आने की वजह से एफडीआई को उन्होंने विरोध किया। मगर निश्चित तौर पर एफडीआई कुछ क्षेत्रों में आंशिक तौर पर आवश्यकता है और इसको लाने पर ही रेलवे की स्थिति भी सुधर सकती है और यात्रियों को भी सुविधा मिल सकती है। तो इसे हम पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और एफडीआई के अलावा जो अन्य जो रिटेल और जो अन्य जो देशी जो है उन्हें भी बढ़ावा देना जरूरी है। इसके अलावा गलगली जी, लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी जनता से बात कर रहे थे, उनकी राय ले रहे थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक मायूसी ज़रूर जनता के बीच थी। लोगों को ये बात का यकीन नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो भी सकती है। और जिस तरह से नई ट्रेनों की बात की गई तो ये भी कहा गया कि हमारे पास उतनी पटरियाँ नहीं है या फिर वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि आखिर वो ट्रेनें जो आएगी, जो नई ट्रेनें शुरू होगी तो वो चलेगी कहाँ। क्या इस बात से आप सहमत कितना रखते हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो मुंबई उपनगरीय रेलवे सेवा है, पश्चिम रेलवे का एक सीमा है और जो मुंबई डिवीजन काफ़ी फैला हुआ है, मगर आज जो उसका जो लोकेशन है, उसका जो परिसर है वो उतना ही है। उसे बढ़ाने के लिए कई बार कोशिश की गई, जैसे कुर्ला ठाणे जो 5th और 6th लाइन की बात हो रही है, कई वर्षों से काम चल रहा है। तो रेलवे को इसके लिए जो एक नया कॉरिडोर बनाना चाहिए और जो एलिवेटेड रेलवे अगर मध्य रेलवे में बनती है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज हम नई ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं और जो पुरानी ट्रेन है वो भी कब तक चलेगी, क्योंकि आज भी मध्य रेलवे का जो टाइमिंग है हमेशा लोगों के लिए मुसीबत बनता है, कोई भी ट्रेन समय पर नहीं चलती है। पश्चिम रेलवे में स्थिति थोड़ी अच्छी है, तो रेलवे को इसके लिए ध्यान देना चाहिए, उन्हें एलिवेटेड रेलवे की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो नई ट्रेनें ला रहे हैं
उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बात की जाए जिस तरह से जो बजट पेश किया गया है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। जिस तरह से 4000 महिला कर्मियों की भर्ती की बात की गई, धार्मिक स्थल के लिए अलग से ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है, साफ़ सुथरी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन फिर सवाल वही है। और साथ ही साथ टिकट के लिए जिस तरह से जो कहा गया है कि मोबाइल के ज़रिए भी अब यात्री अपनी टिकट को जो है वो बुक कर सकेंगे, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी लाने की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए जिस तरह से धांधलबाजी जो चलती है, जिस तरह से हमारे साथ में लगातार जो दर्शक जुड़े हुए थे, जो यात्री लगातार सुबह से हमसे बात कर रहे थे, उसमें से एक यात्री ने ये भी कहा कि उनके साथ ये एक दुर्घटना हो गई थी कि वो जब गांव से मुंबई की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक टीटी मिला। उस टीटी ने उनसे 2500 रुपये वसूले सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ई टिकट था, जिसे उस टीटी ने ये कह दिया था कि ये नहीं चलता है, इसे रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गुमराह कर कर जो लोगों को लूटने का जो काम चल रहा है, क्या इस पर भी लगाम लग सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि रेलवे प्रशासन हमेशा आम यात्रियों से जो बदसलूकी करता है उसकी वजह से रेलवे बदनाम हो चुकी है। तो रेलवे मंत्री को इस मामले में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आम यात्री ये आपका एक उपभोक्ता है, उसे सम्मान देना ये हर एक रेलवे अधिकारी और टीसी का काम होता है। अगर हम धांधली की बात करेंगे, आज उत्तर भारत की ओर जाने वाली गाड़ियों की स्थिति क्या है, वह आसानी से टिकट नहीं मिलती है। जैसे उनके ही पार्टी के विनोद तावड़े और कई लोगों ने रेलवे मंत्री को पत्र लिखकर दलालों पर शिकंजा कसने की, उन पर नियंत्रण लाने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं तो रेलवे मंत्रालय को सीसीटीवी के जरिए, आरपीएफ के जरिए उन दलालों पर भी शिकंजा कसने की आवश्यकता है जो आम यात्रियों से लूट मचाते हैं। क्योंकि आज जो रेलवे की स्थिति है, जिस तरह से रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, तो आसानी से टिकट नहीं मिलती है। 3 महीने पहले भी अगर आपकी टिकट बुकिंग करने हम जाएंगे तो वहाँ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे को अपनी जो टिकट प्रणाली को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, जिससे आम यात्रियों को परेशानी कम हो। जैसा उन्होंने IRCTC को जो अधिकार दिए हैं, उसके अलावा उन एजेंटों को भी अधिकार देने चाहिए जो रेलवे के अधिकृत एजेंट हैं। वो भी अगर रिजर्वेशन टिकट निकालने की उनको अगर छूट देते हैं तो निश्चित तौर पर दलालों पर शिकंजा कस सकता है। और जो दलालों की जो एक भीड़ मची है, जो उनका एक जो रेलवे प्रशासन में भारी पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सकती है और आम यात्रियों को परेशानी कम हो सकती है। बिल्कुल। तो क्या टिकट व्यवस्था, जो टिकट प्रणाली रही है, उसमें कोई सुधार होगा? और जो दलाली हो जाती है, कालाबाजारी होती है रेलवे में, क्या उस पर लगाम लगेगी? ये भी बड़ी बात है। बहरहाल विपक्ष भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। मायावती ने रेल बजट के बाद रेल मंत्री को अपने वादों पर अमल करने की नसीहत दी है। रेलवे विभाग कि जो रेलवे विभाग है बहुत घाटे में चल रहा है। तो जब रेलवे विभाग बहुत घाटे में चल रहा है और रेलवे को जो इसके आधुनिकीकरण करने के बारे में जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा, जब पैसा ही नहीं है। तो इसको ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसको ये पूरा कैसे करेंगे। इसी प्रकार तो उन्होंने ये कहा रेलवे मंत्री ने कि ये 9 रूटों पर वो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन इस समय जो पूरे देश में जो रेलवे लाइनें जो बनी हुई है, जो उनका जाल बिछा हुआ है, उनकी जो पटरी हैं, रेलवे जो लाइनें पटरी हैं, उनकी हालत कितनी ज़्यादा खराब है। तो आज जब तक जो रेलवे जो लाइनें हैं, पटरी हैं, उनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा। और आज की जो वर्तमान जो स्थिति में जो रेल की पटरियां हैं, उन पर ये जो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, मैं समझती हूँ ठीक नहीं होगा। पहले उसमें पटरियों को ठीक करना होगा। एक तरफ कहते हैं कि ये विभाग घाटे में चल रहा है और दूसरी तरफ बातें बहुत बड़ी बड़ी कही हैं रेलवे मंत्री ने, तो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से पैसा लाएंगे अपने उन वायदों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा रेलवे मंत्री जी ने ये भी कहा है कि काफी कुछ उन्होंने कार्य करने की बात कही है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादातर कार्यों पर निजी निवेश की बात कही है।
तो बड़ी बड़ी बातें तो की गई हैं रेल बजट में, लेकिन जब रेल घाटे से पहले से ही जूझ रही है तो उन वादों को अमल में कैसे लाया जाएगा, ये सवाल उठाया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को विकास और प्रगति का साक्षी बताया और कहा है कि इस बजट में समग्र बजट समावेश किया हुआ है और इससे विकास में गति मिलेगी। यह बजट ट्रांसपेरेंसी को बल देता है, इंटीग्रिटी को बल देता है। रेल का विस्तार भी हो, रेल का विकास भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़े। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है। इस बार का रेलवे बजट इस बात को सिद्ध करेगा कि देश के विकास में रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है। आजादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता तो आज विकास की नई ऊंचाइयों को पाने में रेलवे सहायक होता। देर आए दुरुस्त आए, हमने 2014 से विकास की इस गति को, विकास की इस ऊंचाई को आरंभ किया है। भारत में रेलवे विकास के कुछ नए आयामों को भी बल दिया गया है। 125 करोड़ का देश यात्रियों का देश है। भिन्न भिन्न संप्रदाय यात्रा करने के आदी हैं। उनके लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं की जरूरत को रेलवे पूरा करने जा रहा है। वैश्विक इकोनॉमी का ये युग है और ग्लोबलाइजेशन का जब एरा है, तब हमारे पोर्ट सेक्टर को रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। विश्व व्यापार के लिए ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, तो बजट एक्सप्रेस के जरिए नरेंद्र मोदी ने ये बताया है कि ये रेल बजट नहीं है, ये विकास का बजट है। इसी के जरिए, रेल के जरिए जो है वो विकास यात्रा जो है वो अपनी गति पकड़ेगी। क्या कहते हैं अनिल जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेल बजट के जरिए विकास की गति जो है वो तेज़ हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि वाकई विकास की गति तेज़ हो पाएगी? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो उन्होंने एक नई होप पैदा की है और 1 से 1.5 सालों में हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर रेल बजट निश्चित तौर पर विकास करता है या विनाश करता है। क्योंकि इसके पहले भी कितने भी जो बजट थे, हमेशा इन्होंने वादे तो किए, मगर जब प्रैक्टिकली इसके इम्प्लीमेंट की बात आई तो हर सरकार उसमें फेल हो चुकी है। आज हम देखेंगे कि पूरे 10 वर्षों में इस रेल बजट ने करीब 1000 योजनाओं की घोषणा की थी, मगर बमुश्किल उसमें से सिर्फ एक ही योजना इम्प्लीमेंट हो पाई है। तो अगर हम इस पर होप करते हैं तो आने वाले 1 से 2 सालों में इस बजट का क्या एग्जैक्टली आम यात्रियों को लाभ होता है, क्या उसमें विकास होता है कि नहीं होता है, ये देखने की चीज़ है। मगर निश्चित तौर पर पिछला अनुभव देखते हुए हमें लगता नहीं है कि कोई भी रेल बजट विकास की ओर ले जाता है, क्योंकि रेल बजट हमेशा रेल की तिजोरी भरने का काम करता है और आम यात्रियों की जेबों को खाली करने का काम करता है। बिल्कुल, तो आम यात्रियों की जेबों को खाली कर रेलवे की तिजोरी भरने का काम करता आ रहा है रेल बजट। क्या उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है, क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे, कोई बदलाव होंगे, और क्या जो यात्री सुविधाएं की उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि रेलवे पहले से ही घाटे में है, ऐसे में आप बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करके आखिर क्या साबित करेंगे और किस तरीके से इन योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। बजट एक्सप्रेस का सफर आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत के लिए। मुझे और सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया।
बजट एक्सप्रेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह और मैं हूं सलामत अली। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बजट में सदानंद गौड़ा ने क्या कुछ अपने पिटारे से निकाला, क्या कुछ सौगात आम जनता के लिए थी, क्या कुछ सौगात बाकी बजट से किस तरह से विकास जो है वो आगे बढ़ सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मोदी सरकार का ये पहला रेल बजट है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें और आकांक्षाएं देश की जनता को लगी हुई थी। जिस तरीके का सपना मोदी ने दिखाया था, नरेंद्र मोदी साथ ही बीजेपी की सरकार ने कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या रेलवे के भी अच्छे दिन आएंगे, इसे लेकर एक सवाल जरूर बना हुआ था। तो क्या रेलवे के अच्छे दिन आ गए हैं? आज तमाम घोषणाओं का ऐलान किया गया रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के द्वारा, लेकिन विपक्षी उन पर वार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है, कई नई ट्रेनों की घोषणा की गई है, जिसमें से 27 नई एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। और सबसे अहम बात जिसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे लोग, वो ये कि बुलेट ट्रेन का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये बुलेट ट्रेन होगी और इसमें वक्त लगेगा, ये बात भी सदानंद गौड़ा ने कह दी है। और उसके बाद अगर मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल, जी हाँ, 4 जो मेट्रो हैं इंडिया के, उन्हें जोड़ने की कोशिश, जिसका ऐलान नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे में भी किया था और पिछले दिनों किया था, उसकी घोषणा सदानंद गौड़ा ने यहाँ पर कर दी है। और वो बहुत अहम होने वाला है इस्लाम। जी, बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गौड़ा ने अपने बजट में जिस तरह से अपने पिटारे से जो भी चीज़ें निकाली है, जाहिर सी बात है पहला बजट है मोदी सरकार का, तो जाहिर सी बात है उम्मीद काफ़ी थी। हालांकि जो किराया है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, किराया वैसी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुविधाओं की काफ़ी बात की गई है। काफ़ी सारी चीज़ें सुविधा के तौर पर दी जाने की बात की जा रही है, जैसे स्टेशनों पर टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्था है उसको लेकर, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए यात्रियों की, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी सौगातें हैं जो यात्रियों को इस बार मिलने वाला है। इस बजट में ये माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छा नहीं तो काफ़ी बुरा बजट भी नहीं था। हाँ, अब ये तो जांच का विषय है और इस पर हम आलोचना भी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसके पक्ष में दिखेंगे, कुछ लोग विपक्ष में दिखेंगे। किस तरीके का बजट है उसका आकलन किया जाएगा। बहरहाल यात्रियों की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो तमाम सुविधाओं का ऐलान किया गया है। जो प्रमुख स्टेशंस हैं, जो A1 कैटेगरी के स्टेशंस आते हैं, उन्हें हाईटेक बनाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें CCTV से लैस किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो स्वच्छता के मापदंड हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही स्केलेटर्स बनाने की भी घोषणा की गई है, साफ सफाई का विशेष ध्यान। और सबसे अहम बात ये सलामत की PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका भी कहीं ना कहीं समावेश करने की कोशिश की गई है इसके जरिए। जी, और साथ ही साथ FDI को भी इसमें शामिल करने की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि अगले आने वाले 10 सालों में 50,000 करोड़ के कहीं ना कहीं जो विकास की बात की जा रही है और जो प्रॉफिट की बात की जा रही है, उसको टारगेट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें जो है वो की जा रही है। जहाँ तक बात की जाए FDI की, तो FDI को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर चर्चा होनी बाकी है। और साथ ही साथ PPP को, जिस तरह से आपने बताया, PPP भी ज़रूर इसमें शामिल किया जाएगा ताकि लोग भी जुड़ सके और साथ ही साथ विकास जो काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है उसमें तेज़ी ज़रूर आ सके। बिल्कुल, तो विकास को तेज करना है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर दौड़ती हुई ये ट्रेन होगी। क्या उम्मीदें हैं और क्या जो आकांक्षाएं उन्हें पूरा कर पाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। चूंकि मायावती जिस तरीके से खुलकर सामने आ गई और कह रही है कि लोक लुभावन वादे तो कर दिए गए हैं, विकास की तमाम बातें की गई हैं कि रेल में विकास होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में वो धरातल पर सही साबित होता हुआ दिखाई देगा, ये भी एक अहम बात है।
जी, एक अहम बात है। और लगातार सुबह से जिस तरह से हम जनता से बात कर रहे थे, यात्रियों से बात कर रहे थे, और यात्रियों ने भी अपनी परेशानी हम तक रखने की कोशिश की, अपनी बातों को उन्होंने रखा। लगातार हमारे सहयोगी हर स्टेशन पर मौजूद होकर जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे थे। सुबह से ही जिस तरह से बातें हो रही थी, कुछ यात्रियों ने कहा कि स्टेशन और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का जो फासला है उसे कम करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि दरवाजे जो है वो बंद करने वाला जो ऑटो लॉक सिस्टम है उसे लाना चाहिए ताकि जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सके। कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि सुविधाएं नहीं होती है प्लेटफॉर्म पर, जो है किसी प्रकार का कोई शौचालय नहीं होता है, पानी पीने की कोई जगह नहीं होती। तो इन सभी चीज़ों के लिए जिस तरह से बजट में जो पेश किया गया है, शौचालय के लिए और साथ ही साथ साफ सफाई के लिए जो एक विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए एक विशेष ध्यान देने की जिस तरह से जो बात की गई है, हालांकि कहीं ना कहीं यदि बात की जाए तो इस बार जो आम जनता है वो ज़्यादा खुश ना होकर लेकिन थोड़ी बहुत संतुष्ट तो ज़रूर होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन क्या महिला सुरक्षा पर जो वादे किए गए थे उन पर खरी उतरी है मोदी सरकार का? ये पहला जो रेल बजट पेश किया गया है, इस तमाम पहलुओं पर हम नजर बनाए हुए, लेकिन सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। धर्मेंद्र, मोदी सरकार अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता पर काबिज हो गई। आज मोदी सरकार ने पहला रेल बजट पेश किया है। बहुत ज्यादा उम्मीदें आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों को भी थी। उनकी क्या उम्मीदों पर वो खरा उतर पाई है? क्या कहना है मुंबई की जनता का? देखिए, मुंबई की जनता इस वक्त जो है हमारे साथ एक बड़ी संख्या में खड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? आपको भी पता चला होगा कि किस तरीके से पिटारा खोला और बहुत खास बातें सामने आई। नहीं, हमारे तो मुझे तो मंत्री से कोई सवाल पूछने हैं कि पहली बात तो ऐसी है कि यहाँ पे खाली फुटबोर्ड है जो रेलवे का, जहाँ पे खड़ा होकर आदमी 10-10 लोग ट्रैवल करते हैं। पूरी गाड़ी में 100 लोग जाते हैं, वहाँ पे 500 से 1000 लोग ट्रैवल करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि रेलवे हमारी घाटे में जा रही है। करजत से लेके बॉम्बे तक फुल ट्रेन यहाँ पे लोकल पैक होके जा रही है। अगर ये जोनल हमारा अगर जो जोन के हिसाब से चले तो हमारा जोन फायदे में है, तो हम क्यों और पूरे इंडिया का जो है वो खासी हम लोग भुगते। अगर जोन के हिसाब से भाई साउथ अगर तुम्हारा लॉस है तो साउथ पे लगाओ, ये अगर बॉम्बे में है तो बॉम्बे का लगाओ। ये हमारे फुल प्रॉफिट में है, फिर भी हम क्यों उसका पे करें? जो पूरा टोटल यहाँ पे अगर ट्रेन आप देखो तो एक भी ट्रेन खाली नहीं है करजत तक। नहीं, लेकिन इस बार बात की गई है 864 जो बोगीज आएंगे, यानी 64 मुंबई में लोकल चालू होंगी 2 साल में। तो क्या आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं चालू होंगी? हवा से उड़ेंगी। ये 3 मिनट में एक लोकल दौड़ रही है, क्या आधे मिनट में दौड़ सकती है? ट्रैक है उतने पावरफुल, पानी हो गया एक बारिश में, कहाँ से दौड़ेंगी? कितना स्पीड है गाड़ी का? बात ये की गई है जो अल्टरनेट एसी जो दी जा रही थी तेज गति से, अब उसको डीसी डायरेक्ट उसको कनेक्ट किया जाएगा और तेज रफ्तार से। कहाँ से जाएंगी? उतने ट्रैक है क्या ताकतवर की जो जा सके? वो सब झूठी बातें हैं, जा ही नहीं सकेंगी। चलिए, साफ तौर पे इनका कहना है सारी की सारी झूठी बातें, पिटारों पे घाटा निकला है। और यात्री संघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने सुना बाकायदा पिटारा खुला है, एक से एक बातें आई हैं, आपको लगता है धोखा है या फिर असलियत है मुंबई के लिए? देखिए, हम तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि 72 रेक आएगी, लेकिन इस बार रेल मंत्रालय ने या रेल बजट में बताया गया 664, यानी कि आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं घुमा दिया गया। 64 रेक हो गई, यानी कि जो 72 ट्रेनें थी वो 64 पे आ गई। और दूसरा जो है एसी डीसी कन्वर्शन जो है निश्चित तौर पे उसका फायदा होगा, ट्रेनों की सर्विस निश्चित तौर पर बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ेगी, निश्चित तौर पे मुंबई को इसका फायदा जरूर होगा। साथ साथ में हमारी जो उम्मीद थी कि सफाई के बारे में, निश्चित तौर पे सफाई के बारे में उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। जहां सुरक्षा की बात थी, 17,000 RPF की जो है नई भर्ती के बारे में इस बजट में प्रावधान किया है। ये भी खुशी की बात है। सवाल ये होगा, अभी इन सज्जन ने एक सवाल उठाया है कि दुनिया भर के बोगीज चालू होंगे, लेकिन क्या पटरी पर दौड़ पाएंगे? क्या उतनी व्यवस्था हो पाएगी? ऐसे विशेषज्ञ क्या आप बता पाएंगे इस पर? नहीं, देखिए, इस तरह से जो आज 3 मिनट में जो ट्रेनें दौड़ रही है, निश्चित तौर पे हम 1.5 मिनट में 1 मिनट में ट्रेनें फ्रीक्वेंसी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते हैं, जरूर चला है। जब 160 हॉर्स किलोमीटर के तौर पे हम फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तो सबर्बन ट्रेन क्यों नहीं दौड़ सकती? जरूर दौड़ सकती है। ये 64 जो ट्रेनें हैं, जो रैक है, वो निश्चित तौर पे दौड़ेगी। उसकी जो अभी पूर्व जो रेलवे के जो चेयरमैन थे विवेक साय का खुद स्टेटमेंट है, निश्चित, और मुंबई के DRM भी रह चुके हैं, उनको इस सबर्बन ट्रेन के बारे में मालूम है और उनका भी खुद का भी ओपिनियन है कि निश्चित तौर पे 1 मिनट की दूरी में जो हम ट्रेन चला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, अभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। आपको क्या लगता है, सही है ये फैसला? खुशी है? क्या कुछ कहेंगे?
बहुत अच्छा फैसला है। अगर कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेनें चालू की गई हैं तो लोगों का समय बचेगा, आने जाने का जो समय है उसका कहीं ना कहीं सेव होगा। बड़ी खुशी की बात है कि उपनगरों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं महानगरों को जोड़ना चाहिए ताकि लोगों का अधिक समय बचे, लोग कम समय में अपना काम पूरा करें। बुलेट ट्रेन आप क्या कहेंगे? ये हथेली में चांद दिखाया गया है लोगों को, हम बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। आज बुलेट ट्रेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज लोगों को जरूरत है, लोगों की डेली जो सर्विसेज है उसके बारे में जरूरत है। बुलेट ट्रेन तो ठीक है, आदमी जब अहमदाबाद जाना होगा, दिल्ली जाना होगा यूज कर लेगा, और डेली रोज की बात नहीं है। लेकिन आज जो रोजमर्रा जो जरूरत है उसमें बहुत कमी है, उसको सुधारने की काफी जरूरत है। आप ट्रेन की हालत देखोगे, इतनी गंदगी ट्रेन होती है, करोड़ रुपया खर्चा करते, करोड़ लीटर पानी बताते हम खर्चा किए, लेकिन वो भी पानी कहाँ जाता है, किधर पैसा जाता है, कुछ बताते नहीं। आप अगर रेलवे को सफाई के बारे में मार्क्स दोगे, सिर्फ 10 में से 4 मार्क्स आप दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। बिल्कुल, ये सारी बातें सामने आई है, पिटारे पे ये सारी चीजें नहीं निकली है, लेकिन ये जरूर बात की गई है कि लगभग 17,000 जो जवान हैं वो आरपीएफ में भर्ती होंगे, जिसमें से 4,000 महिला होंगी। आपने सुना मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी बहुत कड़क तरीके से करेंगे ऐसा कहना है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अगर सिक्योरिटी अच्छी तरह से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी चीज डिक्लेयर करें उसको लागू होना जरूरी है, और उसमें हमारी जनता को भी सहयोग देने की बहुत ही जरूरत है। जैसे अब हमारी बॉम्बे की बात है, जनता है कहीं भी पान गुटखा खा के थूकते रहते हैं, लेकिन ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ही हमारी साफ सफाई हर चीज पे हम ध्यान दे पाएंगे। नहीं तो फिर खाली गवर्नमेंट के सारी चीज डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। बाकी बुलेट ट्रेन का है, बुलेट ट्रेन चलाने से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं बुलेट ट्रेन से तो एटलीस्ट अहमदाबाद तो जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी समय जाएगा उनका, अपना काम करके रिटर्न भी आ सकते हैं एक दिन में चाहे तो। ये सब चीजें ठीक है। मोनो रेल की बात करें या मेट्रो रेल की बात करें, दोनों के ही जो दरवाजा है वो डायरेक्ट क्लोज है, बंद होते हैं और लोगों में सेफ्टी है। लोकल ट्रेन में भी इस तरीके से क्लोज डोर का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं सकता है। फुटबोर्ड पे अगर 20 लोग खड़े होकर जा रहे हैं, अंदर आए बोलते हैं आरपीएफ लाए, वो चढ़ेंगे कहाँ पे? अब कोई भी मंत्री जी को, कोई भी अधिकारी जो है रेलवे के, जो एसी से चलते हैं, वो हमारे करजट ट्रेन में चढ़ के दिखावे दादर स्टेशन। लेकिन फर्स्ट क्लास तो डब्बे होते हैं, उसमें अधिकारी जाते हैं। फर्स्ट क्लास में भी चढ़ के दिखाए, सेकंड क्लास तो छोड़ो, फर्स्ट क्लास में। हमारी बात यही है कि ये सेकंड क्लास वालों की 80% जनता तो सेकंड क्लास से चलती है। ये ट्रेन किसके ऊपर चल रही है? अभी जो लोकल जी है 80% लोगों के चल रहे हैं ना, सुविधा किनको चाहिए? वो 80% लोगों को चाहिए, उनके लिए क्या दिया है? उनको दो कुछ। अभी आप चढ़ के बताओ, कोई भी ट्रेन में चढ़ के बताओ, दादर स्टेशन पे शाम के ट्रेन में, वो क्या कर सकते हो? उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं है। ये सज्जन जो कह रहे हैं इनकी बात में सच्चाई है, क्योंकि हम भी रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, अपने घर जाते हैं और आते हैं। 864 बोगीज जो हैं ये रेलवे मंत्री ने दिए, इस तरह का पिटारा खोला, लेकिन ये वही मुंबईकर हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और साफ तौर पर एक चीज सामने से कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये सारे बोगीज या फिर इसे परिवर्तित करें 64 ट्रेनों में तो कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरीके से ये जो मुंबई की पुरानी पटरियां हैं इन सारे वजन को झेलेगी, एक अहम सवाल है। जी जिस तरह से धर्मेंद्र, क्योंकि यदि व्यक्ति की बात की जाए तो उनका कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब अपना प्रचार किया था प्रधानमंत्री पद के लिए तो उस वक्त भी कई बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई की ही यदि बात कर ले तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर काबू नहीं किया जा सका। शायद यही वजह है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों का जो विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यही वजह है कि हालांकि बजट पेश कर दिया गया है, बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो जनता के लिए लाई गई है, लेकिन जनता तब भी यकीन नहीं कर रही है। शायद जनता तब यकीन करेगी जब ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाएगी। अहम सवाल है, बिल्कुल। चलिए फिर से एक बार सुभाष गुप्ता जी आपसे ये हम जानना जरूर चाहेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और कई प्रकार के दावे किए और आज जनता में ये आक्रोश है कि कब आएंगे अच्छे दिन, फिर से एक बार पिटारा खोला है, नई चीजें सामने रखी है, आपको लगता है कि अब आएंगे अच्छे दिन? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा हमने घाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नई सरकार आई है, निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है, इस जनता को, इस देश को उम्मीद है कि नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग निश्चित तौर पे देश में होगा और उसका उपयोग देश की जनता के लिए होगा और निश्चित तौर पे नए अच्छे दिन आएंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। देखिए उम्मीद पे ही दुनिया खड़ी है और उम्मीद न करके जो है दुनिया खलास हो सकती है, इसलिए हमें उम्मीद निश्चित तौर पे है। जिस प्रकार से उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और जीत किया है, और उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग देश की भलाई के लिए, रेल की भलाई के लिए, रेल की उन्नति के लिए जरूर होगा। चलिए और लोग से बात करते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने देखा, बता जी एक बार फिर पूछिए इनसे कि पिछले कई सालों से जनता जो है वो सिर्फ उम्मीद पर टिकी हुई है। 67 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ जनता जो है वो उम्मीद पर ही टिकी हुई है। क्या अब भी आगे आने वाले दिनों में जनता को सिर्फ उम्मीद ही रहेगी? अहम सवाल है, पूछने की पूरी कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि हमेशा ही सरकार जो है वादे पे वादे करती है और हमारा फर्ज है उम्मीद करना, इंतजार करना।
अब भी जो सामने चीजें आई हैं, आप उम्मीद करते हैं, इंतजार करने के लिए तैयार हैं? जरूर, जब तक उम्मीद से इंतजार नहीं करेंगे तब तक हमको उसका फल कैसे समझ में आएगा कि मिलेगा कि नहीं। अगर हम एक पढ़ाई भी करते हैं, एक साल पूरी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, तभी हमको मालूम पड़ता है हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को थोड़ा समय देंगे तब हमको समझ में आएगी कि गवर्नमेंट कैसी है। 2 दिन में तो कोई फैसला होने वाला नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ा सब्र देके इंतजार करना पड़ेगा। सर ये बताइए, आपके दुनिया भर के वादे फिर से पिटारे में खुले हैं, क्या सही मुंबई को लेकर फैसला किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो है वादे हैं, वादे वही करता है जो थोड़े बहुत पब्लिक को दिखा सकता है। काफी 30 साल में किसी ने वादे करके दिखाए हैं, पब्लिक में निराशा का माहौल था। कम से कम एक ऐसा प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री मिला है कि आज कम से कम लोगों के बीच में खुशी है। लोग भी समय देना चाहते हैं सरकार को कि इतना जल्दी नहीं है कि कोई 6 महीने में दुनिया बदल देगा, मगर लोगों ने विश्वास है कि आने वाले समय में साल 2 साल जब उसको समय दो, ये पहला बजट है, जब दूसरा बजट होएगा, तीसरा बजट होएगा, जब आप कुछ उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो है इस बार सराहनीय कदम है और अच्छा एक बजट है और आम पब्लिक खुश है, मुंबईकर खुश है। और आने वाले समय में जो जिस हिसाब से वो छोड़ के गए हैं यूपीए गवर्नमेंट, जो खजाना जैसा बोलते हैं, तो खजाने को भरने दो, उसके बाद नई योजनाएं शुरू होने दो, कुछ समय तो कम से कम दो। हर को समय देना पड़ता है। यदि आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कुछ समय देना पड़ेगा। आप 1 महीने में और 40 दिन के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क है कि ऑल इंडिया के अंदर जो है पूरा वर्ल्ड में उसका सवाल ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि 864 बोगीज दी गई है, जिसमें 64 ट्रेनें चलेगी। कुछ लोगों का ये सवाल है, वो भी हम मुंबईकर हैं, कि आखिर कैसे एक ही पटरी पे ये सारी चीजें एक ही समय पर दौड़ेगी, कैसे व्यवस्था पूरी होगी, ये है सवाल। नहीं, व्यवस्था पूरी ये होगी कि यदि नई ट्रेन दी जा रही है तो कम से कम उसका रखरखाव जो है, मेंटेनेंस पे जो है रेलवे को खर्चा कम आएगा, लोगों को सुविधाएं उसमें मिलेगी और उसमें जो है ड्रिलमेंट वगैरह जो रेलवे के होते हैं वो कम हो जाएंगे और लोग कम से कम उसमें जो है सेफ्टी के हिसाब से जो है सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थान पर जो है पहुंच सकते हैं। मतलब हम ये मानकर चलें कि पिटारे में आज मुंबई के लिए जो कुछ खुला है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, आज फिलहाल इतना ही उसमें आशा थी कि इतना कम से कम जो है मोदी जी ने उतना किया है और जब से कम उनके लिए एक मेरी जो डिमांड थी लोगों की, यहाँ पर जो सेंट्रल रूट से जम्मू के लिए एक गाड़ी चलाई जाए, क्योंकि यहाँ से मुंबई के लिए जम्मू के लिए गाड़ी जो है एक स्वराज के अलावा कोई गाड़ी नहीं है, तो कम से कम वो भी 4 दिन है हफ्ते में, तो कम से कम जो है मुंबई सेंट्रल से जो है एक यदि जम्मू के लिए गाड़ी दे दी जाती थी, पब्लिक और खुश हो जाती थी, मुंबई कर और खुश होते थे। उससे जो है आपको नासिक और जलगांव और ये सब उनको रूट पे गाड़ी मिलती थी, कल्याण और उल्लासनगर वालों को भी एक जम्मू जाने के लिए गाड़ी मिल जाती थी। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि मुंबई कर के लिए वो आगे अगले साल 2 साल में योजना पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बुलेट ट्रेन जैसे चलाने वाली चीजों से ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं कि जो कुछ अभी रेलवे चला रही है, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहां तक पटरियां बिछी हैं, सिर्फ उसे ही स्वस्थ रखें, उस पर ही काम रखें, वही बहुत अच्छी, कम से कम जाने बचेंगी। क्या कहेंगे? नहीं, जाने बचने के लिए जैसा अभी इन्होंने जो है ईएमयू लोकल्स में जो ऑटोमेटिक डोर्स लगाए हैं वो सराहनीय कदम है, मगर यहाँ की भीड़ को देखते हुए वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर यहाँ पर मुश्किल कुछ नहीं है। यदि कोई काम करना चाहे तो काम करने के लिए यदि गवर्नमेंट की जिज्ञासा है, काम करने का एक अच्छा है तो पॉजिटिव रिजल्ट है, तो पब्लिक को भी यहाँ पे उसको सराहनीय कदम उठाना चाहिए। और जो डेथ होती है उसमें कम से कम रेलवे को भी फायदा रहेगा, जो कंपनसेशन दिया जाता है वो भी रेलवे का बचत होएगा। उसी बचत में जो है सेफ्टी डोर लगा दिए जाए और एक पब्लिक को जो है साफ सुथरा जो है अपना एक यात्रा जो है गंतव्य स्थान पर पहुंचने को मिलेगा। एक दो लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो खुश है। आपने सुना 864 बोगीज आएगी, 64 नई ट्रेनें आएंगी, कैसा लग रहा है? खुश हैं? खुश तो देखो सब खुश है, पर हमें उस गाड़ी से क्या मतलब है? हमें तो लोकल ट्रेन बढ़ानी है कि रोज लोकल ट्रेन में रोज 20 आदमी 25 आदमी रोज मर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में जो जाने वाले हैं उनको कितनी तकलीफ है। हम लोग 5-5 गाड़ी 6-6 गाड़ी छोड़ते हैं नाला सोपारा से, जब जाके हम यहाँ पहुँचते, और वहाँ से कोई भी स्पेशल लाइन में नहीं है। जो भी गाड़ी चलती है अंधेरी तक बैलगाड़ी चलती है, उसके बाद फास्ट चलती है। तो गाड़ी बढ़ा के मतलब क्या है? पटरी बढ़ाओ, ट्रैक बढ़ाओ, कुछ सुविधा दूसरी करो। 4 लाइन है, 4 लाइन में तुम कितनी गाड़ियाँ भगाओगे? टाइमिंग तो वही है, टाइमिंग का क्या फर्क पड़ा बताओ? जब गाड़ी बढ़ा रहे हो टाइमिंग को एडजस्ट करो ना। खाली गाड़ी बढ़ा के मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो गाड़ी बढ़ा रहे हो पब्लिक चढ़ रही है, बैलों की तरह पब्लिक चढ़ रही है। रोज 20 आदमी 25 आदमी रोज मर रहे हैं। स्कूल के बच्चे को कितनी तकलीफ है, कॉलेज वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए, सबके लिए। लेडीज लटक लटक के जा रही है, ऐसे लटक रही है जैसे कि कुछ पूछो मत। तो हमें तो कोई टाइम पे पहुंचते नहीं है, रोज से सेठ की 2 बात सुननी पड़ रही है हमें कि आप टाइम पे आते क्यों नहीं हो। फिर वही सवाल लोगों की जहन में लगातार फिर वही सवाल चलता जा रहा है कि 864 बोगीज दी गई हैं, 64 नई ट्रेनें आएंगी 2 साल में, लेकिन वो चलेंगी कैसे? इस तरह एक बात जरूर हम साफ करेंगे कि इस वक्त मुंबई करों के मनों में असमंजस का माहौल है।
बिल्कुल जाहिर है यात्री सुरक्षा एक अहम सवाल रहा है मुंबईकर्स के जहन में भी, और ये प्राथमिकता जताई है सदानंद गौड़ा ने भी। आज का जब रेल बजट पेश किया है उसमें भी ये प्राथमिकता जताई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्री सुरक्षा पर प्राथमिकता जताने के बाद जो जरूरी कदम है वो आखिरकार उठाए जाएंगे? क्या हकीकत के धरातल पर वो सही साबित होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि बड़ा आंकड़ा सलामत मुंबई में अगर बात की जाए तो मुंबई लोकल में एक बड़ा आंकड़ा होता है जो घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा यात्री जो हैं जो लोकल ट्रेनों से सफ़र करते हैं, लाखों की संख्या में मुंबईकर्स हैं जो डेली ऑफिस ट्रैवल करते हैं और बड़ी संख्या में वो घटनाओं का शिकार होते हैं। तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा मुंबई के लिए रहा है। अगर खासकर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का ऐलान किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, चूंकि मुंबई और अहमदाबाद की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर आप बुलेट ट्रेन शुरू करते हैं इतनी कम दूरी के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करने के पीछे क्या औचित्य हो सकता है? क्योंकि बुलेट ट्रेन अगर आपको शुरू करनी थी तो आप डिस्टेंस जो लंबी दूरी की डेस्टिनेशंस हैं उनको भी चुन सकते थे। तो कहीं ना कहीं क्या गुजराती बिजनेसमैन हैं या बिजनेस क्लास जिनके सपोर्टर नरेंद्र मोदी कहे जाते हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये कदम उठाए गए हैं? ये भी एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है। जी, कहीं ना कहीं सवालों की जिस तरह से बातें की जा रही है, हालांकि कई सवाल इस बजट को लेकर जो है वो उठ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, हालांकि बहुत अच्छा सवाल था आपका कि आखिर मुंबई से लेकर अहमदाबाद ही क्यों बुलेट ट्रेन को चुना गया है। बुलेट ट्रेन की जिस तरह से बात की जाती है, जिस तरह से स्पीड होती है बुलेट ट्रेन की, जाहिर सी बात है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे चुनना चाहिए था, लेकिन अहमदाबाद को चुनने के पीछे कई रीजंस थे। मोदी जिस तरह से बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो हमेशा ही जो गुजराती बिजनेसमैन है एक अहम तबका है जिन्हें टारगेट हमेशा ही किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी के फेवर के लोग हैं और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स हैं, और शायद यही वजह है कि उन्हें खुश करने के लिए ये एक शुरुआत की गई है। दूसरी चीज़, एक शॉर्ट डिस्टेंस बुलेट ट्रेन शुरू करने के पीछे रीज़न भी यही है कि बहुत जल्दी ये ट्रेन ये जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी, और जब विकास की बात की जाएगी तो विकास की बातों में ये एक बात ज़रूर होगा कि हमने बुलेट ट्रेन शुरू किया। बिल्कुल जाहिर है, तो बुलेट ट्रेन एक लंबे अरसे से सपना रहा है, और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे भी वहां पर लगातार मौजूद है, लोगों के बीच उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। हम उनसे भी बीच बीच में रिएक्शंस लेंगे कि मुंबईकर्स आखिर क्या सोच रहे हैं। बहरहाल अगर यात्री सुविधाओं की बात की जाए तो यात्री सुविधाओं के नाम पर तमाम अहम ऐलान किए गए हैं। शौचालयों के प्रबंध की बात की गई है, बायो टॉयलेट्स की बात की गई है, साफ सफाई के लिए सीसीटीवी निगरानी रखेंगे, प्रमुख जो स्टेशन हैं उन पर ये सीसीटीवी लगाए जाएंगे, बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए वहां पर बैटरी से चलने वाली जो कारें हैं स्टेशन पर वो लगाए जाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही जो टिकट बुकिंग में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं तो आप मोबाइल के ज़रिए और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन सलामत जो भीड़ भाड़ होती है स्टेशन में जो जिससे यात्री दो चार होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय रेलवे सबसे बड़ी है दुनिया में और बड़ी संख्या में यात्री जो हैं वो यात्रा करते हैं, ऐसे में जो प्लेटफॉर्म का माहौल होता है, क्या उसकी तस्वीर बदलती हुई दिख रही है आज के जो ऐलान किए गए हैं? जी, फिलहाल जिस तरह से ऐलान किया गया है, हालांकि तस्वीर तो तब बदलेगी जब ये वास्तविक रूप से जो है वो सामने आएगा। हालांकि जिस तरह से जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से जो डायग्राम बनाया गया है, अब देखना होगा कि ये डायग्राम कितने हद तक सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जब सक्सेसफुल होगा तभी जाकर चीज़ें जो है वो बदल सकती है। हालांकि हाँ, ये बात से जो है वो कोई ना नहीं कह सकता है कि जो सुविधाएं देने की बात की गई है, हालांकि ये सुविधाएं कहीं ना कहीं यात्री ज़रूर चाहते थे, प्लेटफॉर्म पर शौचालय ज़रूर यात्री चाहते थे, और साथ ही साथ यदि बात की जाए बाकी सुविधाओं की, तो जिस तरह से बाकी सुविधाओं की बात की जा रही है लगातार जो सलामत हम बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। इस वक्त रेल मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं वहां का। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन हम रेल मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां तक आपको ले चलेंगे। लेकिन पहला रेल बजट है मोदी सरकार का और बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, चूंकि अच्छे दिनों का जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सपना दिखाया था, क्या वाकई में वो अच्छे दिन आएंगे? और रेलवे बदहाली का शिकार है, इस बात का जिक्र भी किया गया कि पिछले 10 सालों में जो यूपीए का शासन रहा है उसमें जो प्रोजेक्ट्स थे वो अधर में लटके हुए पाए गए और कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित है। चलिए, सदानंद गौड़ा की तरफ चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। That we have already getting the survey reports. On that basis, we are going ahead. Diamond quadrilateral train that will be started from Ahmedabad, Mumbai region first. Then we will go ahead.
we are working at it, and a small amount is allotted in this budget to take up that work. And increase in the speed of trains, select trains, that is another area we are identified. Already you might have seen one trial run has been done between Delhi, Agra, and other areas also we are going to take up within the near future. Northeast regions, especially, we want to, we have focused more on the northeast. Railway connectivity is very less. We have, this time, nearly more than 54% more than what was allotted earlier. This year, we have allotted